آپ اس سچویشن کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جیسے اب سے کچھ دیر قبل آپ نے بتایا کہ 3 سے 6 بلین ڈالر کی کمٹمنٹ سامنے آئی ہے ایرانی وفد کی جانب سے، انہوں نے مانگی ہے. اس کے علاوہ کیا کسی اور پوائنٹ پر بھی بات کی گئی ہے یا صرف ابھی اسی پہ سٹک ہیں وہ؟ ابھی ہم ان کو کھلوانے پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہرمز کا معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے امریکہ کی طرف سے. امریکہ کی ڈیلیگیشن کا ماننا یہ ہے کہ جو ابنائے ہرمز کے اوپر آپ نے پبلکلی اناؤنس کیا کہ ہم نے وہاں پہ آب جاوت روکی، آپ اس کو ہٹائیں. ایرانین ڈیلیگیشن کا ماننا یہ ہے کہ آپ یہ پیسے ریلیز کرنے کی کمٹمنٹ دیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کمٹمنٹ دیں کہ لبنان کے اوپر حملے جو ہیں وہ فوری طور پر بند ہوں گے. فی الحال تو یہ ایشوز سامنے آئے ہیں، لیکن جو باقی ایشوز کا آپ نے ذکر کر رہی ہیں وہ ٹیکنیکل ٹیم سے بیٹھیں گی تو اس میں آپ کے سامنے آئیں گے کہ کس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن ابھی تک تو آپ کو منجمد اثاثے ان سے متعلق مختلف رقوم کی 6 بلین ہے، اور آبنائے ہرمز کا فوری طور پر کھلوانا اور اس کی کمٹمنٹ ایران کی طرف سے، یہ ڈیمانڈز لسٹ ہمیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے طلعت صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ 14 نکاتی ایم او یو ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات چیت ہے، ورکنگ گروپس بنائے جائیں گے، آبنائے ہرمز کے کنٹرول کے حوالے سے بات چیت ہوگی، اور جبکہ منجمد فنڈز کو کیسے ڈی فریز کیا جائے گا، 300 ارب کی امدادی رقم دینی ہے، اس حوالے سے بھی معاملات زیر غور ہیں. اس کے علاوہ کیا مختلف شقیں ہیں؟ دیکھیں 14 نکات کے اندر پہلی شق تو جنگ بندی کی ہے، اپنا ہرمز کے کھولنے کی ہے، جو وار ہے اس کے فوری طور پر خاتمے کی ہے، جو ساؤتھ لبنان کے اوپر حملے روکنے کی ہے، امریکہ کی طرف سے کمٹمنٹس ہیں منجمد اثاثوں کو ہٹانے کی، پیسے کے ریلیز کرنے کی، ڈیولپمنٹ فنڈز 300 بلین ہے اس کی کمٹمنٹ اس کے اندر موجود ہے، ایران کی طرف سے نیوکلیر ویپنز نہ بنانے کی کمٹمنٹ موجود ہیں، اور پھر اس تمام معاملے کو ایک ویریفیکیشن کے ذریعے تصدیق کرنے کے نظام اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں لے کے جانا ہے، جہاں پر آپ کو ایک ریزولوشن پاس کروانی ہے جو بائنڈنگ ریزولوشن ہوگی. تو ترتیب میں اگر آپ اس کو پڑھیں تو بڑا لمبا چوڑا ایجنڈا ہے، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ اگر پیسوں والا معاملہ، منجمد اثاثوں والا معاملہ طے ہو جاتا ہے، اور ایران کی طرف سے نیوکلیر کمٹمنٹ کا اعادہ دوبارہ سے ہو جاتا ہے، اگرچہ ان کے صدر نے یہ آلریڈی کمٹمنٹ کر دی ہے، تو میرے خیال میں کافی زیادہ آپ کو ایک پیش رفت نظر آئے گی. ٹھیک ہے طلعت صاحب، یہ بھی کہے گا کہ ان چاروں وفود کے شیڈیول کے حوالے سے کیا کوئی خبر سامنے آئی ہے؟ جی، شیڈیول کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اب سے 10 منٹ کے بعد سوئس اتھارٹیز کے ساتھ میٹنگ ہے، لیکن اس سے پہلے ایران کی ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ اس وقت جاری ہے جو طے کی گئی. آپ سمجھیں کہ کھڑے کھڑے ہی طے ہوئی کہ وزیر پاکستان اور فیلڈ مارشل نے ایران کے ڈیلیگیشن راجچی صاحب اور غالباف کے ساتھ ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور پھر ان کے فارن آفس کے اسپوکس مین پاکستان کے فارن آفس کے آفیشلز کے ساتھ مل کر گئے، اور اب وہ میٹنگ چل رہی ہے. پھر اس کے بعد فوٹو سیشن ہے، دہراتے ہوئے کہ بڑا اہم سیشن ہے، اس کے اندر باڈی لینگویج کی اسسمنٹس ہوں گی، اور اس کے بعد ٹیکنیکل ٹاکس ہیں. ان ٹیکنیکل ٹاکس کو بند کمروں کے اندر کیا جائے گا اور میڈیا کے لیے اوپن نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے طلعت صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ 60 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، 60 ڈیز کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، جیسے جیسے مذاکرات ہوں گے کیا ٹائم بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ہمیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ آپ کے لیے معلومات کے حصول کے لیے 2 لوگوں سے بات کر کے، کیونکہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جی اگر آپ کو تھوڑی دیر کروں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے طلعت صاحب اس وقت سوئٹزرلینڈ میں برگن اسٹاک میں موجود ہیں، اور اس وقت وہاں سے مسلسل ہمیں اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں، صبح سے وہ لائیو ہمیں وہاں سے اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں. طلعت صاحب بہت شکریہ آپ کا.
अपने नाजरीन को बताते चलें अहम नौयत की ये मुज़ाकरात अब से कुछ देर बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद होने जा रहे हैं और टेक्निकल नेगोशिएशन का ये पहला राउंड है जो कि पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में होने जा रहा है। इससे पहले हम आपको मुसलसल अपडेट रखे हुए हैं और तरत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि खुद बर्गिन स्टॉक में मौजूद हैं और इस सारी सूरत हाल को खुद विटनेस कर रहे हैं और वो हमें बता रहे थे कि अब से कुछ देर बाद वफूद के सरबराहान का आपस में फ़ोटो सेशन भी होगा और ईरान की जानिब से ये मुतालबा सामने है कि 3 से 6 अरब डॉलर की यकीन दहानी कराई जाए। पाकिस्तान ने अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया है और पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में ही ये अहम नौयत के नेगोशिएशन का पहला राउंड होने जा रहा है जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि किस फ्रेमवर्क के तहत ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि 3 टेक्निकल कमेटियां बनाई जाएंगी और उसके बाद ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान की सालिसी के नतीजे में पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव, पाकिस्तान की शटल डिप्लोमेसी के नतीजे में ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। उन दोनों आलमी ताकतों को एक मेज़ पर बिठाया जो कि आपस में बात करने को तैयार नहीं थी, बैठने को तैयार नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने दिन रात एक करके ऑब्जेक्टिव रोल प्ले करके, सिग्निफिकेंट रोल करके इन दोनों ममालिक को इस नहज तक ले आए कि आज ये दोनों ममालिक एक मेज़ पर बैठने को तैयार हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि बड़े खुशगवार माहौल में, बड़े खुशगवार बॉडी लैंग्वेज में तमाम तर वफूद का आपस में मुसाफा हुआ, मुलाकात हुई। फिर वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेडी वेंस से मुलाकात हुई और साथ ही साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई। जेडी वेंस की जानिब से गुफ्तगू की गई है, उन्होंने क्या कहा आपको वो सुनवाती हैं पहले। About the Pakistani role, especially very good. We love Pakistan. Thank you. About the Pakistani role, especially very good. We love Pakistan. Thank you. Very good. We love Pakistan. About the Pakistani role, especially very good. We love Pakistan. Thank you. About the Pakistani role, especially very good. We love Pakistan. Thank you. ठीक है, ये आपने गुफ्तगू सुनी जेडी वेंस की जानिब से, ये गुफ्तगू की गई है। आपको बताते चलें कि अमेरिका ईरान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कुछ देर बाद शुरू होंगे। समा के मुज़ाकरात के मकाम से बराह रास्त कवरेज जारी है। समा को ख़ास तौर पर रसाई हासिल है और ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अब से कुछ देर पहले ये मुलाकात हुई थी जेडी वेंस की वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ से और साथ ही साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। और अब ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर टेक्निकल नेगोशिएशन शुरू होगी जिसके बाद आगे का लाहा अमल तय किया जाएगा। गालिबन तकरीबन अगर यूँ कहा जाए कि 1.5 घंटे का वक्त दिया गया तो ये गलत नहीं होगा। राउंड्स ऑफ टॉक होंगे और उसके बाद ही आगे का जो है ना वो लाहा अमल तरतीब दिया जाएगा। हमें यह भी बताया गया कि 3 से 6 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट मांगी गई है ईरानी वफ्द की जानिब से और उसके अलावा वफूद के सरबराहान को की जानिब से फोटो सेशन भी होगा और उसके बाद ही जो प्रॉपर निगोसिएशन का मरहला है वो आगे बढ़ाया जाएगा। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं जेडी वेंस की जानिब से क्या गुफ्तगू की गई है। About the Pakistani role, especially very good. We love Pakistan. Thank you. About the Pakistani role, especially very good. We love Pakistan. Thank you. Very good. We love Pakistan. Thank you. About the Pakistani role, especially very good. We love Pakistan. Thank you. About the Pakistani role, especially very good. We love Pakistan. Thank you. Very good. We love. अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले बड़ी पेशरफ्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नायब अमरीकी सदर से मुलाकात हुई। ये तारीखी मनाजिर उस मुलाकात के हैं जो नाजरीन आप देख रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी जेडी वेंस से मुलाकात हुई। तारीखी लम्हात हैं, तारीखी मुज़ाकरात हैं जो कि दुनिया विटनेस कर रही है और इसमें अहम किरदार है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की थ्रू आउट जो एफर्ट्स रही हैं वो पूरी दुनिया ने देखी हैं। ये सिलसिला चला था इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से मुज़ाकरात हुए थे उन दो ममालिक के दरमियान कि जिनका कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि एक साथ बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, बात करेंगे और ये सिलसिला बिलाखिर यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत से एफर्ट्स इसमें पाकिस्तान के और दीगर ममालिक के शामिल हैं और आज हम ये तारीखी मनाज़र विटनेस कर रहे हैं कि बराह रास्त ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जेडी वेंस से मुलाकात की है। मुलाकात में अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद है। मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई है जैसे कि आप देख भी सकते हैं इन मनाज़र में।
اور शहबाज शरीफ ने जब जेडी वेंस से मुलाकात की तो इस दौरान उनकी बातचीत भी हुई, गुफ्तगू हुई। इसी तरह से ईरानी वफ्द में बाकिर कालिबाफ और अब्बास अरागची भी शरीक हैं। लबनान में जंगबंदी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा, ये एक अहम पॉइंट है जो कि इन मुज़ाकरात में रखा गया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ये बताना है कि ईरानी तेल पर पाबंदियों में नरमी, मुंजमद असासों पर बात होगी। तो ये वो पॉइंट्स हैं कि जो आज इन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे, जिनके ऊपर बात की जाएगी। और समा इस सारी कवरेज में बराह रास्त अपने नाजरीन को अपडेट रखे हुए है। अमरीका ईरान हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की डेडलाइन है और इस डेडलाइन के दौरान बहुत सी बातें, बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर निगोशिएट भी किया जाएगा, बात भी की जाएगी। और सिफारतकारी का बादशाह अगर इसमें कहा जाए पाकिस्तान को तो गलत ना होगा, क्योंकि इन दो ममालिक को इस नहज पर लेकर आना, मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाना, वो दो ममालिक जो कि जंग के दहाने पर थे उनको बातचीत के अमल तक लेकर आना, एक मेज़ पर बिठाना, ये एक बहुत बड़ा टास्क था जो कि पाकिस्तान की जानिब से ना सिर्फ अचीव किया गया बल्कि पाकिस्तान ने दुनिया को भी ये बता दिया कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हुए इन दो ममालिक को एक मेज़ पर बिठा भी सकता है और मुज़ाकरात की नहज तक ला भी सकता है। तो नाज़रीन, ये वो तारीखी मनाज़िर हैं जो कि दुनिया विटनेस कर रही है, हम भी आपके साथ विटनेस कर रहे हैं कि ये आज होने को है और ये एक बड़ी कामयाबी है कि जो अचीव की जाएगी, जिसमें पाकिस्तान का खासकर अहम किरदार उमर रहा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि कौन है सिफारतकारी का बादशाह। पाकिस्तान ने फिर तारीख रकम कर दी है और इस तारीखी लम्हे में समा की है लम्हा बलम्हा कवरेज और तारीख साज मुज़ाकरात से आपको अपडेट कर रहा है मुसलसल समा। ईरानी वक्त को मिनाब 168 का नाम दिया गया है। ये वही स्कूल जिस पर हमला किया गया था और मासूम बच्चियों ने अपनी जान गंवाई थी और उसी से मंसूब किया गया है। और पाकिस्तान ने ये जो तारीख साज सिफारतकारी की है, पूरी दुनिया अब उसकी मोहतरिफ है और दुनिया ने डे वन से जो पाकिस्तान का किरदार रहा उस पर बात की। लेकिन अब जिस तरीके से मामला आगे बढ़ते थे फिर दो कदम पीछे हो जाते थे, पाकिस्तानी मेक श्योर किया कि बिल्कुल जब तक ये सब तमाम जो सूरत हाल है वो मुकम्मल नहीं हो जाती, मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो जाते, उस पर अमल दरामद नहीं हो जाता, पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। और हमारे दुश्मनों ने बारहा कोशिश की, बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है उस पर उंगलियां उठाई जाए, उस पर सवाल उठाए जाए। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो शानदार सिफारतकारी की और पूरी दुनिया को बता दिया है, खासतौर पर हमारे इर्द गिर्द जो दुश्मन मौजूद हैं जिनकी ये ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से ये मुज़ाकरात अपने जो अंजाम तक ना पहुंचते, उन्हें बताया कि बादशाह कौन है, वो है पाकिस्तान। और इस तारीखी लम्हे में कर रहा है तारीखी कवरेज समा, अपने नाज़रीन को मुसलसल लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहा है। अभी आपको मुज़ाकरात के हवाले से तो बताएं, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी नायब सदर से मुलाकात हुई है, वहां पर मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल भी वहां पर मौजूद हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी जेडी वेंस से मुलाकात हुई है। मुलाकात में अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी वहां पर मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद लतीफ़ साहब, आपकी गुफ्तगू हम सुबह से सुन भी रहे हैं, लेकिन ज़रा एक लम्हे को अगर हम आपको और नाजरीन को पीछे ले जाएं उस रात की तरफ कि जब दो ऐसे मुमालिक जो जंग के दहाने पर थे और बस अब ऐसा लग रहा ही था कि जिस तरह से अमेरिका कह रहा था कि ईरान को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा, ऐसे में पाकिस्तान का इंटरवीन करना, फिर इस्लामाबाद टॉक्स का होना, मुज़ाकरात का यहाँ तक आना, ये इतनी आसानी से पॉसिबल लग रहा था? कितनी एफर्ट्स इसमें पाकिस्तान की शामिल हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, सुबह से हम यही बात कर रहे हैं, बल्कि कल से। देखिए ये बहुत आसान, बल्कि आप यूं कहिए कि दुनिया का अभी तक जियोपॉलिटिक्स के अंदर मुश्किल तरीन एक मामला है, जो कि एक किसी दो मुल्कों के दरमियान में नहीं है, पूरे एक रीजन का है। एक वॉलेटाइल रीजन इस मामले की वजह से पूरा हुआ है। और फिर डिकेड्स ओल्ड ये क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बल्कि उससे भी पहले का। और आपने देख लिया कि अब जो 14 पॉइंट्स और जो प्रपोजल्स हैं जो अंडर डिस्कशन हैं, उसमें से 3 तो अरब क्वेश्चन को डील करते हैं डायरेक्टली, जो ईरान ने दिए हैं, जिसपे ईरान एडमेंट है कि इनका सोल्यूशन होना चाहिए। जब तक इनका सोल्यूशन नहीं होगा, पेरिनियल पीस या परमानेंट पीस नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी वजह ये आप है हमारे कि साथ हैं मौजूद, अपने नाज़रीन को ये मनाजिर हम दिखाते हैं कि वहाँ पर मुलाकातें भी इस वक्त जारी हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ, जेरेड कुशनर से मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात भी हुई है और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर मौजूद हैं। आबिद साहब, आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा प्लीज़। जी, तो ये एक इतना मुश्किल जो हिस्ट्री का क्वेश्चन थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2 चीजें कॉमन हैं। एक तो
یہ جو کچھ پیلسٹین مینڈیٹ کے بعد ہوا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، اور پھر اسرائیل کا جیسے وجود میں آنا، اور پھر اسرائیل جو ہے وہ خالی اب اسپوائلر نہیں ہے، اب وہ سیبٹیئر بن گیا ہے۔ اسرائیل دیکھیں جتنے جیو پولیٹیکل ڈیسیژنز ہیں وہ جیو پولیٹیکل چیس بورڈ پہ حل کیے جاتے ہیں، لیکن اسرائیل تو ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے وہ چیس بورڈ پہ نہیں ہے، وہ کیرم بورڈ پہ ہے، اور اسٹرائکرز اس کے پاس ہیں، جس کو چاہے وہ اسٹرائک کر دے، جس کو چاہے وہ لکویڈیٹ کر دے، جس اسٹیٹ کو چاہے وہ فیل اسٹیٹ میں کنورٹ کر دے۔ اس کی تو تصدیق عابد لطیف صاحب واشنگٹن پوسٹ بھی کر چکا ہے نا گزشتہ روز، وہ بھی کہہ چکا ہے کہ اسرائیل اس امن معاہدے کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ وہ اب اسپوائلر نہیں، وہ سیبٹیئر ہے، وہ سیبٹاج کرتا ہے جی۔ اور دیکھیں لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اس میں ایک بہت اسٹرینج ڈیولپمنٹ ہے جو پہلی دفعہ ہوئی ہے جب سے 1947 کے بعد سے، جب سے اسرائیل بنا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے پہلی دفعہ جو ہے وہ اسرائیل کا جو ایکسیپشنلزم ہے میرا خیال ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اور اب اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے نہیں چلے گا، بیکاز جو امریکن ٹیکس پیئر ہیں، جو امریکن جس طریقے سے امریکہ نے آل along اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، اب وہ یہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس جنگ کے اندر بھی اسرائیل نے امریکہ کو دھکیلا، امریکہ کے کوئی آبجیکٹیوز نہیں تھے، اور اسی لیے اس کا اینڈ سٹیج بھی نہیں تھی وار کی، کیونکہ آپ کی وار کی اینڈ سٹیج